السلام علیکم ناظرین، روشن ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک پورا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے آج کی اہم سرخیوں پر۔ کسانوں کو مناسب قیمت فراہم کرنے کے لیے دھان خریداری مراکز کا قیام۔ بی جے پی کے زیر اقتدار ریاستوں میں مناسب قیمت نہ ملنے پر ریاست تلنگانہ میں دھان کے ذخیرے کو فروخت کرنے کا ریاستی اسمبلی اسپیکر پوچورام سرینواس ریڈی نے کیا انکشاف۔ ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی کے ویلپور میں واقع رہائش گاہ میں گنگستان فیز 2 ایسوسی ایشن کے ممبران نے ملاقات کر کے مشن بھگیرتا پانی کی سہولیات فراہم کرنے کی خواہش کی۔ پولیس ملازمین کی عظیم ترین قربانیوں کی وجہ سے سماج میں موجود عوام خوشحال زندگی گزار رہی ہے۔ پولیس یوم شہداء کے موقع پر سی پی کارتکیہ کا بیان۔ تنظیمی و ملکی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر وسط ظرفی سے سیرت کے پیغام کو عام کرنے کی ضرورت۔ مفتی سید اکبر صدر مجلس تحفظ ختم نبوت و دیگر علماء و ذمہ داران کا خطاب۔ حافظ سید واجد نواز صدر، حافظ وسیم خان جنرل سیکرٹری، حافظ عامر نائب صدر کا شرکا سے اظہار تشکر۔ شہر نظام آباد کی فعال و متحرک تنظیم تلنگانہ جمعیت الحفاظ ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا عظیم الشان انعقاد۔ حیدرآباد کے مختلف سماجی کارکنوں کا نظام آباد کے بیت المال کا دورہ۔ وہ بیت المال صدر یحییٰ ظفر کی قیادت میں کیے جانے والے کاموں کی ستائش کی اور مستقبل میں ادارہ بیت المال کے ساتھ مل کر مختلف فلاحی کام انجام دینے کا کیا عزم۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی کے بالکنڈہ حلقہ ویلپور منڈل میں واقع رہائش گاہ میں ٹی آر ایس قائدین و عوامی نمائندوں کی ہلچل نظر آئی۔ ریاستی وزیر امارت و شورا ویملا پرشانت ریڈی کے بالکنڈہ حلقہ ویلپور منڈل میں واقع رہائش گاہ میں ٹی آر ایس قائدین و عوامی نمائندوں کی ہلچل نظر آئی۔ اس موقع پر نومنتخب پی آر ٹی یو قائدین نے ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی سے ملاقات کرتے ہوئے ان سے متعلقہ مسائل سے واقفیت کروانے کی بنا پر ریاستی وزیر نے دلچسپی لیتے ہوئے فوری طور پر حل کرنے کا تیقن دیا۔ اس پروگرام میں پی آر ٹی یو کے ضلع صدر جنرل سیکرٹری پی موہن ریڈی وینو موجود تھے۔ اسی طرح سے گنگستان فیز 2 کے نو منتخب ہونے والے صدر جنرل سیکرٹری نرسنگ راؤ سائی اور ٹرانسکو اے سی رویندر نے ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی سے ملاقات کی۔ تنظیمی و ملکی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر وسط ظرفی سے سیرت کے پیغام کو عام کرنے کی ضرورت۔ مفتی سید اکبر صدر مجلس تحفظ ختم نبوت و دیگر علماء و ذمہ داران کا خطاب۔ حافظ سید واجد نواز صدر، حافظ وسیم خان جنرل سیکرٹری، حافظ عامر نائب صدر کا شرکا سے اظہار تشکر۔ شہر نظام آباد کی فعال و متحرک تنظیم تلنگانہ جمعیت الحفاظ ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا عظیم الشان انعقاد۔ شہر نظام آباد کی فعال و متحرک تنظیم تلنگانہ جمعیت الحفاظ ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام لمبرا گارڈن فنکشن ہال بودھن روڈ پر منعقدہ مختصر مفید کامیاب سیرت النبی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مولانا سید بشیر احمد اشرف حسامی صاحب نے کہا کہ آج کتابوں و عظموں، تقریروں اور جلسوں سے زیادہ اپنے کردار سے نبی کی سیرت کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم مسلمانوں نے ظاہر کو دین سمجھ لیا اور صرف اسلام کے نام پر اکتفا کر کے مسلمان سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ دین ہمارے اعمال و اخلاق سے ظاہر ہونا چاہیے اور اپنے باطن میں نور ایمانی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ صدر جمعیت العلماء نظام آباد مولانا سید سمیع اللہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بہت وسیع ہے جس کا احاطہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن آپ کی سیرت کا ایک اہم پہلو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کا ہے، جو آج معاشرے سے یہ چیز بالکل ناپید ہوتی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہترین
انسان وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا رہتا ہو۔ اگر اس سیرت پر مسلمان عمل کرے تو معاشرے سے آئلی مسائل کے جھگڑے آسانی سے ختم ہو سکتے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی احمد عبدالعظیم نے کہا کہ ہر سال 12 ربیع الاول آتا ہے اور گزر جاتا ہے مگر ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، جو انتہائی افسوس کی بات ہے۔ کہا کہ اگر ہر انسان نبی کی ایک تعلیم کے متعلق ہم عہد کر لیں کہ اس پر عمل کریں گے تو ایک سالہ انقلاب اس امت میں آ سکتا ہے۔ مثلاً جھوٹ کے بارے میں سب مسلمان وعدہ کر لیں کہ آج کے بعد سے جھوٹ نہیں بولیں گے تو دنیا سے ایک برائی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ صدر ادارہ ادب اسلامی جناب عبداللہ اقبال ندیم نے آپ علیہ السلام کی دعوت دین والے شعبے پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ جس تنظیم اور جماعت نے بھی اس حوالے سے کام کیا اور کر رہی ہے وہ قابل قدر ہے۔ مزید اتحاد و اتفاق کے ساتھ اس شعبے میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ صدر ہر سوسائٹی مولانا اسماعیل عارفی صاحب نے کہا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو آج زندہ کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ سلام کو عام کرنا، بیماروں کی عیادت کرنا، جنازوں میں شرکت کرنا، غربا و مسکین کو کھانا کھلانا، چھینکنے والوں کو جواب دینا وغیرہ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں، اس پر عمل کرنا بھی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ناظم مدرسہ ضیاء الہدا مولانا شیخ حیدر قاسمی نے کہا کہ عاشقان رسول کو چاہیے کہ وہ اپنی کسی حرکت اور عمل سے نبی کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہیے۔ شادی بیاہ و دیگر موقعوں پر اتباع رسول کو سامنے رکھ کر عملی اعتبار سے ثبوت دینا چاہیے کہ ہم آپ سے کس قدر محبت کرتے ہیں۔ اس موقع پر ناظم اجلاس مولانا عبدالقیوم شاکر القاسمی جنرل سیکریٹری نے کہا کہ تلنگانہ جمعیت الحفاظ ایک مثالی تنظیم ہے جو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے میں ہر وہ کام انجام دینے کی کوشش کرتی ہے جس کی امت مسلمہ کو ضرورت ہے۔ بطور خاص مفلوق الحلال بیوگان اور ضرورت مندوں میں ماہانہ راشن تقسیم کا سلسلہ تو گزشتہ 2 سال سے جاری و ساری ہے۔ صدر اجلاس مولانا مفتی سید اکبر صاحب نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ جمعیت الحفاظ سوسائٹی اپنے کارناموں سے جانی پہچانی جانے والی تنظیم ہے اور ساتھ ہی ساتھ امت مسلمہ کو حقوق نبی سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رسول اور اطاعت رسول یہ 3 حقوق تو ہر مسلمان کو ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ علاوہ ازیں ملک کے موجودہ حالات کے تناظر میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے کاموں کو سراہنے والے بنے، آپسی اتحاد و اتفاق کے ساتھ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر پہلو کو عوام و خاص میں عام کریں، وسط ظرفی کا مظاہرہ کر کے دلوں کو جیتنے والے بنے۔ مفتی صاحب کی دعا پر اجلاس کا اختتام عمل میں آئے۔ اس موقع پر محمد وجہ اللہ جمعیت الاہل حدیث جمعیت الحفاظ ویلفیئر سوسائٹی کی خدمات کو سراہتے ہوئے حافظ واجد نواز و جملہ کارکنان کو مبارکباد دی۔ جناب شکیل خان، جناب مجاہد خان، جناب حافظ مصیب خان کے علاوہ کثیر تعداد میں علماء حفاظ و عوام الناس نے شرکت کرتے ہوئے اجلاس کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ جناب حافظ عامر خان حیدرآباد نائب صدر سوسائٹی نے تمام ہی مہمانوں کا استقبال و شکریہ ادا کیا۔ آدمی بس یہ سمجھا کہ میں جو کچھ ہوں صحیح، باقی سب غلط، میں جو کچھ کر رہا ہوں میں ہی کر رہا ہوں، باقی سب بیکار ہے۔ تو ایسی جو نظری آ گئی ہے، جو جھگڑالو دل بن گیا ہمارا، تنقیدی جو مزاج بن گیا ہے، یہ ہماری روحانی دنیا کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ اس لیے ضروری ہے ان حالات کے اندر، اس ملک کے اندر موجودہ گھروں میں جو فتنہ، فساد، انتشار، بد اخلاقی، تشدد، بد زبانی، بدگمانی، خطرناک روحانی امراض جو پنپ رہے ہیں، اس لیے ایک بات طے کر لیں کہ ہم کو اپنا دل سب سے محبت کرنے والا بنانا ہے، اللہ سے لے کر بس آتے جائیے گھروں میں، خاندانوں میں، تنظیموں میں، کوئی بھی کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی تنظیم سے تعلق رکھنے والا ہو، ہر مسلمان کو ہم عزت دیں۔ حیدرآباد کے مختلف سماجی کارکنوں کا نظام آباد کے بیت المال کا دورہ و بیت المال صدر یحییٰ ظفر کی قیادت میں کیے جانے والے کاموں کی ستائش کی اور مستقبل میں ادارے بیت المال کے ساتھ مل کر مختلف فلاحی کام انجام دینے کا کیا عزم۔ ادارہ بیت المال جو نظام آباد کے علاقے ٹیلی فون کالونی میں موجود ہے، اس ادارے میں خواتین کے لیے کمپیوٹر سینٹر، ٹیلرنگ سینٹر و دیگر کورسز کا قیام عمل میں لایا جا چکا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ غربا کی تقاریب کے لیے اس عمارت میں متصلہ فنکشن ہال کی بھی تعمیر کی گئی، جہاں پر رعایتی قیمت پر فنکشن ہال دیا جاتا ہے۔ اس ادارے کا گزشتہ شب حیدرآباد کے مختلف تنظیموں سے وابستہ قائدین نے دورہ کیا، جس میں SDIF سوشل ڈیٹا انیشیٹو فورم سے وابستہ محمد اعظم
खान साहब, इकरमुल्ला खान साहब, मोहम्मद मुश्तबा खान ने सदर बैतुल माल याहिया जफर व बैतुल माल इंतजामिया के साथ दौरा करते हुए इनकी खिदमत की सताइश की और शहर निजामाबाद में इस तरह के खिदमत व फलाही काम को देखकर काफी मुतासर हुए। पूरे तेलंगाना में इस तरह की खिदमत न होने का इजहार किया और मुस्तकबिल में हैदराबाद की तंजीमों के साथ मिलकर इदारा बैतुल माल में और भी मुख्तलिफ खिदमत फराहम करने व अवाम की मदद के लिए बेहतरीन काम अंजाम देने का इन्होंने अज़्म किया। इंतजामिया इदारा बैतुल माल की जानिब से तमामी मेहमानों को शालपोशी और गुलपोशी अंजाम दी गई। इदरीस मिर्जा वाइस प्रेसिडेंट, सैयद अयूब मुजाहिद ज्वाइंट सेक्रेटरी, मिर्जा नदीमुल्ला बेग ज्वाइंट सेक्रेटरी, मिर्जा अजीमुल्ला बेग व दीगर मौजूद थे। बहुत खुशी है हम लोगों को यहाँ निज़ामाबाद आके आप लोगों की इतनी अच्छा इदारा देखें हम लोग। माशाल्लाह मेरे ख्याल से ऐसा तेलंगाना में हम सोच रहे थे कि तेलंगाना में और कोई ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में और कहीं नहीं होगा इतना बड़ा, इतना अच्छा मैनेज किया हुआ। बहुत अच्छा लगा पूरे औरतों के लिए और बच्चियों के लिए इतना अच्छा आप इंतज़ाम करें यहाँ पे। तो अलग अलग चीज़ें हैं, टेलरिंग यूनिट रखे और फिर कंप्यूटर का ये रखे और मेहंदी का बच्चों को सिखाने के लिए, ताकि उनको आगे जाके कुछ उनके कमाने का ज़रिया बने और घर में उनके लिए अच्छा रहे ये चीज़। बहुत खुशी हुई ये चीज़ देख के। और जो अरेंजमेंट है, जो आप लोग सब इसमें जो काम कर रहे हैं अपने याहिया ज़फ़र साहब के सदरियत पे, माशाल्लाह बहुत खुशी हुई आप लोगों को सब मिल के और ये देख के। शादी खाना बहुत अच्छा है आपका और बहुत कम उसका ये रखे, बहुत अच्छी सहूलत है। और उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ के इतने बेहतरीन इदारे के साथ भी हम कभी ना कभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम तो करेंगे। बहुत कुछ सीख के जा रहा हूँ आज मैं, बहुत कुछ समझ के जा रहे हैं हम सब। उम्मीद करते हैं कि आगे जाके हम दोनों के बीच में भी और भी कोई काम होगा। अस्सलाम वालेकुम। आपको तो मालूम है बैतुल माल इदारा 52 साल से ही कारकर्दगी कैसा चल रहा सो है। आप लोगों के ताउनों से कि क्या है मालूम है इदारा चल रहा सो है। शादी खाना और लेडीज़ के सेक्शन में कंप्यूटर और एक टेलरिंग सेंटर, दिग्जात मेहंदी का सेक्शन भी क्या है कोविड की तरफ से बंद थे, मगर इंशाल्लाह भी इतनी चालू है। आप लोगों का क्या है में कि बच्चों के कि दाखिला दिलवाइए और इससे कि इसके बाद करिए और शादी खाना कम से कम रेट में कि हम रखे सो है आपकी सहूलत के खातिर क्या है मालूम है क्या। पुलिस मुलाजमीन की अजीम कुर्बानियों की वजह से अमन व अमान की बरकरारी। निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकिया का सहाफती बयान। जिले निजामाबाद के पुलिस ग्राउंड में मुनक़िदा यौम शोहदा पुलिस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकिया ने शिरकत करते हुए कहा कि पुलिस एहलकार व स्टाफ खिदमत अंजाम देने के दौरान अपने कीमती जानों की कुर्बानियां देते हुए मुल्क व कौम की खिदमत अंजाम देने के बाइस आज हम पुरअमन तौर पर खुशगवार माहौल में जिंदगी गुजारने का इजहार करते हुए कहा कि हर साल 15 अक्टूबर ta 21 अक्टूबर तक शोहदा पुलिस हफ्ता तकारीब का इनेकाद अमल में लाते हुए पुलिस मुलाजमीन की अजीम कुर्बानियों के मुतालिक तलबा में शौर बेदारी अमल में लाने के लिए मजमून नवेसी मुकाबला जात मुनक़िद करने का इजहार किया। और इन्होंने मजीद कहा कि हर साल यादगार शोहदा पुलिस तकारीब को बड़े पैमाने पर इनेकाद अमल में लाने पर भरपूर तरीके से खराज अक़ीदत पेश करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में कामरेडी SP एन श्वेता, IPS, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस V अरविंद बाबू, एडिशनल DCP एडमिट उषा विश्वनाथ, एडिशनल DCP AR P गिरिराज, कामरेडी एडिशनल SP एडमिन अनोनिया, निजामाबाद ट्रैफिक ACP वेंकटेश्वरलू, R प्रभाकर राव, कामरेडी SP ARD हारुदिया कृष्णा व दीगर ने शिरकत की। ప్రపంచంలో గొప్ప త్యాగం ప్రాణ త్యాగమే। యూనిఫామ్ వేసేవాళ్ళు, ఖాకీ వేసేవాళ్ళు, అది స్టేట్ పోలీస్ కావచ్చు, సివిల్ పోలీస్ కావచ్చు, బటాలియన్ కావచ్చు, CRPF, BSF, ITBP, SSB, all wings of police department, whether state police or central police organization, సంవత్సరాల్లో 365 days ప్రతిరోజు వాళ్ళు సమయం ఇస్తారు, శక్తి ఇస్తారు, నిబద్ధత ఇస్తారు, అవసరమైతే ప్రాణం కూడా ఇస్తారు. సో నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, ప్రాణం అంటే బిగ్గెస్ట్ సాక్రిఫైస్. ప్రాణం కంటే ఇంకా పెద్ద త్యాగం ఏమీ లేదు. సో ఈ రోజు మాకు ఒక చిన్న అవకాశం ఉన్నది. 21st రోజు మేము ఫ్రమ్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ తెలంగాణ పోలీస్ అండ్ నిజామాబాద్ పోలీస్ కమిషనరేట్
చాలా చాలా గ్రాటిట్యూడ్, చాలా చాలా గౌరవ వందన ఫ్రమ్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ టు ఆల్ down their lives. So Daniki first a huge tribute from the district administration side. Firstly, second the reason is prati police tama vidhi nirvahanalo kartavyam kosam mundu untunnarani 1959 nunchi 20th vidhi nirvahanalo unna 10 mandi CRPF javanuలు Ladakh lo. Actually this incident or this celebration has started from 1959 onwards and रियासती सतह पर मनादिर की तरक्की के लिए चीफ मिनिस्टर KCR की जानिब से फंड से मुख्तस करने का रियासती वजीर इंदिरा करण रेड्डी ने किया इजहार। रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने रियासती वजीर इंदिरा करण रेड्डी के हमरा बांसवाड़ा हलके के रुद्र मंडल में वाक़े अब्बहम लक्ष्मीपुर कैंप देहात में श्री रामालया की तामीरी कामों से मुताल्लिक़ भूमि पूजा प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर मुनक़िदा इजलास में इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी की काविशों के सबब निजाम सागर प्रोजेक्ट में कालेश्वरम के ज़ख़ाराब आने से ज़राअत पर मुनहसिर होकर जिंदगी गुजारने वाले किसानों को पानी की सरबराही में आसानी होने का इजहार किया। పాత నిజాం సాగర్ సింగూరు ఏమైపోతుందంటే పోయినసారి వాస్తవం ఎండిపోయింది. మేము ఉన్నప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గర మాట్లాడినప్పుడు ఇప్పుడు ఇంతకుముందు మన ఇక్కడ రైతులు చెప్పారు, సోదరులు చెప్పారు, ఎంత కష్టపడి వారు నీళ్లు సింగూరు ప్రాజెక్ట్ నుంచి నిజాం సాగర్ నుంచి పోచంపాడు కూడా నీళ్లు ఇడిపించి అక్కడ పంటలను పెద్దపల్లి ప్రాంతంలో పంటలను కాపాడడం కూడా జరిగింది. వారు చెప్పిన తర్వాతే ఇప్పుడు అదే గోదావరి నీళ్లు మరి ఇప్పుడు అక్కడ మల్లన్న సాగర్ ద్వారా మళ్ళీ మనకు సింగూరుకు మరియు నిజాం సాగర్కు నీళ్లు రావడానికి ముఖ్యమంత్రి గారిని ఒప్పించి ఎంత ఖర్చైనా పర్వాలేదు అని చెప్పి మా పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి గారు ముఖ్య కారణంగా ఇవాళ నిజాం సాగర్ సింగూరు రెండుగా శిష్యాబలం ఉంటాయి. బహుశా కూడా ఆ సొరంగం మీద కొద్దిగా పని జరుగుతుంది, కొద్దిగా కాంట్రాక్టరు పని జరగడం లేదు కాబట్టి ఒక సంవత్సరం ఎక్కువ దీక్షలు పట్టడం, భక్తి మార్గాన్ని అనుసరించడం, ఆలయాలు సందర్శించడం, పూజలు చేయడం, ఇది ఒక మంచికి చిహ్నం. సమాజాల్లో జరిగేటువంటి ఈ చెడు ప్రభావాన్ని తగ్గించి మంచి వైపు తీసుకెళ్లేటువంటి ప్రయత్నం అనేది యువతకు వచ్చిందంటే ఇది చాలా అభినందనీయం. దానికి తోడుగా మందిరాలు, మసీదులు, చర్చిలు, మతాలు, కులాల ఆధారంగా మనం జరుపుకునేటువంటి పూజలు ఇవన్నీ మన నియోజకవర్గంలో కూడా వారి శాఖలో ఇప్పుడు తీసుకున్నటువంటి 3 కాకుండా ఈ 7 సంవత్సరాల తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత వారే దానికి మంత్రిగా ఉన్నారు కాబట్టి ప్రత్యేకంగా బాన్స్వాడ నియోజకవర్గానికి చెందినటువంటి ప్రతిపాదనలు దాదాపు 25-30 గ్రామాల ప్రతిపాదనలు మందిరాలు పంపిస్తే ఆ 30 గ్రామాలకు కూడా ఆలయాలు మంజూరు చేసినటువంటి ఘనత ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి గారు. जिले निजामाबाद के गंगस्तान फेज 2 में मुखिम अव्वाम ने रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी से मुलाकात की। वो मिशन भगीरथा के जरिए पानी की फराहमी अमल में लाने की ख्वाहिश की। रियासती वजीर इमारत और शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी के वेलपुर में वाक़े रिहाइशगाह में गंगस्तान फेज 2 रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन के मेंबरान ने मुलाकात की। वो गंगस्तान फेज 2 में मुकीम अवाम को मिशन भगीरथा के जरिए पानी की फराहमी अमल में लाने की ख्वाहिश करने पर रियासती वजीर इमारत और शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी ने दिलचस्पी लेते हुए फौरी तौर पर पानी की सरबराही से मुताल्लिक मसले को हल करने का तयक़ुन दिया। उम्रा ज़ायरीन के लिए 2,50,000 कमरे मुख्तर। मस्जिदुल हरम और मस्जिद नबवी को पूरी गुंजाइश के तहत नमाजी और ज़ायरीन के लिए खोलने के फैसले के बाद मक्का मौजिमा के होटलों, ट्रांसपोर्ट और बाजारों में भी लोगों की तादाद में इजाफा देखने में आया है। सऊदी अरब की हुकूमत ने कोरोना वबा के असरात कम होने के बाद गुज़िश्ता इतवार से कुछ एहतियाती तदाबीर में नरमी के साथ हरमैन शरीफैन को मुकम्मल गुंजाइश के तहत 1.5 साल बाद नमाजियों के लिए खोल दिया गया है। कौमी कमेटी बराए हज उम्रा और टूर ऑपरेटर रुकन मोहम्मद असमी ने al-arabiya.net को बताया कि मौजूदा उम्रा सीजन के दौरान उम्रा ज़ायरीन को तमाम खिदमात फराहम करने के लिए तकरीबन 200 उम्रा कंपनियां और इदारे काम कर रहे हैं। इन्होंने मजीद कहा कि खिदमात में उम्रा ज़ायरीन को हवाई अड्डों से वसूल करना, होटलों में इनके क़याम और ताम का इंतजाम, मस्जिद हरम में इनकी आमद रफ्त और निगरानी के लिए एतमन्ना एप्लीकेशन के
जरिए रजिस्ट्रेशन की जा रही है। इसमें उम्रा कंपनियों और इदारों की तरफ से अहल मुलाजमीन के जरिए बराह रास्त निगरानी और उम्रा करने के सफर के दौरान हर ग्रुप के साथ मौजूदगी और इनके बारे में फॉलो अप शामिल है। इन्होंने निशानदही की कि मक्का मुकर्रमा में 250 2.5 लाख से जायद होटल के कमरे हैं जो कि बैनुल अक़वामी मियार के मुताबिक तैयार करने के बाद आज़मीन उम्रे के लिए मुख्तस किए गए हैं। क़याम की सहूलत न सिर्फ बैरून मुल्क के उम्रा ज़ायरीन के लिए है बल्कि अंदरून मुल्क से आए ज़ायरीन भी वहाँ क़याम कर सकते हैं। मोहम्मद अल समी ने मज़ीद कहा कि उम्रा कंपनियां और इदारे हज्जाज को आज की आमद से लेकर इनके मुल्कों की रवानगी तक बेहतरीन खिदमात फराहम करते हैं। दस्तूर के हुकूक को अवाम तक पहुंचाने के लिए मेंबर ऑफ सेक्रेटरी तेलंगाना लीगल सर्विस अथॉरिटी रेणुका ने मुतहदा जिलों के तहसीलदार व सरपंच को दी हिदायत। जिले निजामाबाद के कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में बरोज़े चाशुम्बा मुनक़िद होने वाले वीडियो कॉन्फ्रेंस में मेंबर ऑफ सेक्रेटरी तेलंगाना लीगल सर्विस अथॉरिटी रेणुका ने मुतहदा जिलों के तहसीलदार व सरपंच से तबादले ख्याल करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा स्कीमात को कामयाब बनाने वाले अहदेदार पान इंडिया को कामयाब बनाने के लिए कोशिश करते हुए सतह गुरबा से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुफ्त कानूनी खिदमात फ्राहम करते हुए दस्तूर में मौजूद हुकूक को तमाम अवाम तक पहुँचाने का इजहार किया। ప్రజలందరికీ ప్రముఖంగా ఈ ప్రాథమిక హక్కు అంటే జీవించే స్వేచ్ఛ, తర్వాత వాక్ స్వాతంత్రం, తర్వాత ఏ మతమైనా పాటించడం, ఏ ఉద్యోగమైనా చేయగలగడం, ఇటువంటి దేశంలో ఎక్కడికైనా వెళ్ళగలగడం, ఇటువంటి స్వాతంత్రాల గురించి, ఇటువంటి ప్రాథమిక హక్కుల గురించి తెలుసు. అదే రాజ్యాంగంలో మన న్యాయ వ్యవస్థకు సంబంధించి देश प्रजలందరికీ ఒక హక్కు ఉండాలి. అది आर्टिकल 39A। गुज़िश्ता साल की तरह फैज़ान एजुकेशन सेंटर की जानिब से मुख्तलिफ कोर्सेस में दाखिले जारी, मुफ्त रहनुमाई कैंप। फैज़ान एजुकेशन सेंटर की जानिब से नेट मुफ्त रहनुमाई कैंप साल गुज़िश्ता की तरह इस साल भी फैज़ान एजुकेशन सेंटर की जानिब से MBBS, BHMS, BUMS, BAMS, BDS जैसे कोर्सेस में दाखिलों के सिलसिले में रहनुमाई कैंप का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। तुलबात को सही रहनुमाई न मिलने की वजह से इन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दाखिलों के लिए ज़िम्राबंदी किस तरह की जाती है, दाखिले का तरीक़ेकार क्या है, ऐसे और भी बहुत से सवालात है जो तुलबा और वालिदैन के जहन में उभरते रहते हैं। इन सवालात के जवाबात और तुलबा की सही रहनुमाई के लिए बरोज़ इतवार 24 अक्टूबर बवक्त 2 बजे दिन बमुकाम सना बैंक्वेट हॉल खिला रोड पर मुफ्त रहनुमाई कैंप का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसमें हैदराबाद की मशहूर मारूफ मेडिकल काउंसलिंग एक्सपर्ट जनाब अब्दुल रब आरिफ साहब तुलबा से मुखातिब करेंगे और दूसरे मेहमान खुसूसी का भी इस मौज़े पर खिताब होगा। तुलबा और तालिबात से ख्वाहिश की जाती है कि इस सुनहरे मौके से इस्तिफादा हासिल करें। मज़ीद तफसीलात के लिए 9849310852 पर डॉक्टर समी अमान से रब्त कर सकते हैं। रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने वर्नी मंडल के खदीम वर्नी में धान खरीदारी मराकज़ का इफ्तिताह अमल में लाया। रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने वर्नी मंडल के खदीम वर्नी में ज़राई कोऑपरेटिव सोसाइटी के ज़ेरे निगरानी में क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी मराकज़ का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर स्पीकर ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि किसानों को अक़ल तरीन इमदादी रकम फराहम करने के मकसद के तहत धान खरीदारी मराकज़ का क़याम अमल में लाते हुए रियासती हुकूमत की जानिब से ग्रेड ए की पैदावार को 1960 रुपये और ग्रेड बी की पैदावार को 1940 रुपये अदा करने का इजहार करते हुए कहा कि बीजेपी के ज़ेर इक़्तिदार रियासतें जैसे केरला, कर्नाटक में मुक़ीम किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार को मुनासिब कीमत न मिलने की बिना पर रियासत तेलंगाना का रुख करके धान के ज़ख़ीरे को फरोख्त करने का इजहार किया। వ్యతిరేకంగా మాట్లాడితే ముఖ్యమంత్రి గారు ఢిల్లీకి వెళ్ళి అక్కడ మంత్రి గారిని 2 రోజులు కలిసి బతిమలాడుకొని అయినా వారిని ఒప్పించి ముఖ్యమంత్రి గారు నిన్ననే మొన్న మీటింగ్ పెట్టారు హైదరాబాద్లో. ఈ కొనుగోలు కేంద్రాలు పెట్టకపోతే వ్యాపారస్తులు వారి లాభాల కోసం ప్రతిరోజు ధర తగ్గిస్తూ ఉంటారు. ధర తగ్గకుండా ఉండాలి, రైతుకు నష్టం జరగదు ఉద్దేశంతో ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశం ప్రకారంగా ఈరోజు రాష్ట్రంలో 6,635 గత సంవత్సరం మాదిరిగానే కొనుగోలు కేంద్రాలు కూడా ఏర్పాటు చేసి 1960 రూపాయలు ఏ గ్రేడు,
₹1940 బి గ్రేడ్ ధాన్యాన్ని మద్దతు ధరకు కొనాలని मुत्तहदा जिले निजामाबाद DCCB चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी ने रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व पार्टी के कारगुजार सदर तारक रामाराव के अहकामात के मुताबिक बेरकुर मंडल के AR गार्डन में बांसवाड़ा हलके के मंडल से वाबस्ता अवामी नुमाइंदों व कायदीन के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया। मुत्तहदा जिले निजामाबाद DCCB चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी ने रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व पार्टी के कारगुजार सदर तारक रामाराव के अहकामात के मुताबिक बांसवाड़ा हलके के मंडल सतह से वाबस्ता अवामी नुमाइंदों व कायदीन के साथ बेरकुर मंडल के मुकाम पर वाक़े AR गार्डन में इजलास मुनाकिद करते हुए कहा कि इस माह की 25 तारीख को पार्टी का प्लेनरी इजलास और 15 नवम्बर को मुनक़िद होने वाले TRS पार्टी के क़याम के 2 दहाइयों की तक़रीब से मुतालिक पार्टी से वाबस्ता अवामी नुमाइंदों कायदीन को सलाह व मशवरा देते हुए कहा कि मुनक़िद होने वाले तक़ारिब को कामयाब बनाने की हिदायत दी। కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్ కానీ షాదీ ముబారక్ చెక్ కానీ ఇస్తే ఏంటంటే పక్కనున్న వాళ్ళకు కూడా అర్థమవుతుంది ప్రభుత్వము ఏ రకంగా ఆదుకుంటుందనేది అందరికి తెలుస్తుంది కాబట్టి దయచేసి మనం మీటింగ్స్ పెట్టుకోకుండా మీరు ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళాలని చెప్పేసి ఇటువంటి కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఎన్నో కార్యక్రమాలు ఈరోజు ఎన్నో చేస్తున్నాము కానీ ఇంకా పూర్తి స్థాయిలో కింది లెవెల్ వరకు పోతలేదు అది కింది లెవెల్ వరకు వెళ్ళాలి అంటే 100 करोड़ वाले हिंदुस्तान में 100 करोड़ कोरोना वैक्सीन की खुराक मुकम्मल करने के मद्देनजर वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। जिले निजामाबाद की बीजेपी पार्टी दफ्तर में 100 करोड़ वाले हिंदुस्तान में 100 करोड़ कोरोना वैक्सीन की खुराक मुकम्मल करने के मद्देनजर आज वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। इस प्रोग्राम में बदम किशन, पंचा रेड्डी, लक्ष्मण, ए श्रीनिवास, एम विजय व दीगर ने शिरकत की। మరి మోడీ గారు కంకణం కట్టుకొని నా భారతీయ నా బిడ్డలు ఎందరో మంది అశువులు బాస్తున్నారు, ఈ కరోనా వ్యాధితో మరణిస్తున్నారు, ఏ రకంగా అయినా సరే నా దేశాన్ని నా భారతీయుల్ని రక్షించుకున్నాలనే ఆలోచనతోటి शहर के न्यू अम्बेडकर भवन में मुनक़िदा TSRTC रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन के इजलास में मेहमान खुसूसी के तौर पर RTC चेयरमैन व रूरल MLA बाजू रेड्डी गोवर्धन ने की शिरकत। जिले निजामाबाद के न्यू अम्बेडकर भवन में मुनक़िदा TSRTC रिटायर्ड एम्प्लॉयज यूनियन के दूसरे इजलास में मेहमान खुसूसी के तौर पर RTC चेयरमैन रूरल MLA बाजू रेड्डी गोवर्धन ने शिरकत करते हुए कहा कि TSRTC मुलाजमीन से वाबस्ता मसाइल के हल के लिए कोशिश करने के अलावा रिटायर्ड मुलाजमीन से मुतालिक मसाइल को भी हल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में रियासती रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन कायदीन, जिले के कायदीन भारी तादाद में शिरकत की। भीमगढ़ मंडल के मुकाम पर महकमे दही तरक्की अहदेदार चंदन नायक ने अचानक दौरा करते हुए पल्लीकोंडा देहात में प्रकृति जंगलात का किया मुशाहिदा। भीमगढ़ मंडल के मुकाम पर महकमे दही तरक्की अहदेदार चंदन नायक ने अचानक दौरा करते हुए पल्लीकोंडा देहात में प्रकृति जंगलात का मुशाहिदा करते हुए दरख्त की बेहतर निगहदाश्त न होने पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि लगाए गए पौधों को रोजाना पानी की सरबराही अमल में लाते हुए तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए पंचायत सेक्रेटरी को हिदायत दी। इस प्रोग्राम में मंडल के अहदेदार APO नरसैया, पल्लीकोंडा सरपंच व नायब सरपंच राजेश्वर और MPTC मेंबरान, पंचायत सेक्रेटरी व दीगर ने शिरकत की। इख्तिताम से खबर नजर डालते आज के अहम सुर्खियों पर। किसानों को मुनासिब कीमत फराहम करने के लिए धान खरीदारी मराकज़ का क़याम। बीजेपी के ज़ेर इख्तिदार रियासतों में मुनासिब कीमत न मिलने पर रियासत तेलंगाना में धान के ज़ख़ीरे को फरोख्त करने का रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने किया इंकशाफ। रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी के वेलपुर में वाक़े रिहाइशगाह में गंगस्तान फेज 2 एसोसिएशन के मेंबरान ने मुलाकात करके मिशन भगीरथा पानी की सहूलियात फराहम करने की ख्वाहिश की। पुलिस मुलाजमीन की अजीम तरीन कुर्बानियों की वजह से समाज में मौजूद अवाम खुशहाल जिंदगी गुजार रही है। पुलिस यौम शोहदा के मौके पर CP कार्तिकिया का बयान।
तंजीमी व मुल्की इख्तलाफात को बालाए ताक रखकर वसत ज़रफ़ी से सीरत के पैगाम को आम करने की ज़रूरत। मुफ्ती सैयद अकबर सदर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत व दीगर उलमा व ज़िम्मेदारान का खिताब। हाफिज़ सैयद वाजिद नवाज सदर, हाफिज़ वसीम खान जनरल सेक्रेटरी, हाफिज़ आमिर नायब सदर का शुक्र से इज़हार तशक्कुर। शहर निज़ामाबाद की फालो मुतहरिक तंजीम तेलंगाना जमीयतुल हुफ़्फ़ाज़ वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतिमाम सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का अज़ीम शान इनेकाद। हैदराबाद के मुख्तलिफ समाजी कारकुनों का निज़ामाबाद के बैतुल माल का दौरा व बैतुल माल सदर याहिया जफर की क़ियादत में किए जाने वाले कामों की सताइश की और मुस्तक़बिल में इदारा बैतुल माल के साथ मिलकर मुख्तलिफ फलाही काम अंजाम देने का किया आज़म। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।